Hello, students. So, today we are going to study a new story, Short Monsoon Diary. This is written by Ruskin Bond. He was born on 19 May 1934. He is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landover, Mussoorie, India. So, we are very lucky that we are having such a great writer in our country, and he has mainly written for children. You must have read many stories written by Ruskin Bond, and he was awarded Sahitya Academy Award in 1992. Okay, now we will study a very beautiful short story type written by him. Okay, so this is a actually a diary. What is a diary? It is a record which is very personal. Okay, so moral of the story is that for those who observe it with interest, nature can be a very beautiful thing. So it is all about nature. This full lesson is all about nature. That nature can be very interesting if you enjoy, if you observe carefully. So we will find lots of little observations written by Ruskin Bond. This story is extracted, it is taken from Ruskin Bond's diary, a record of personal experience written day after day over a long period of time. So, this is a record. What is a diary? You can have a definition here. A record of personal experiences written day to day over a long period of time, for which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. मिरेकल्स यानी चमत्कार, प्रकृति के चमत्कार, तो आपको बड़ा मजा आएगा। और अगर आप आंख मीच के इस लेसन को पढ़ने के बाद एक सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी एक हिल स्टेशन पे हैं और जहाँ पे बहुत ही बारिश हो रही है, वहाँ पे कैसा मौसम है, कैसे पेड़ हैं, कैसे कीड़े मकोड़े हैं, कैसे जानवर हैं, उन सब के बारे में चलिए हम जानते हैं, तो बड़ा मजा आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। So here is a full word meanings. You can note down the word meanings because they are very important. So you can here pause the slide and you can see the word meanings. Okay, let's start. So you can see the diary. Date is always mentioned here. In the end of the video, I have given you a link where you will learn how to write diary. So please, you follow the link and learn how to write a diary. It is in your syllabus also. जून 24 द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, यानी कि जून 24 की डेट है, उस दिन वो लिख रहे हैं मॉनसून मिस्ट, यानी कि मॉनसून माने बारिश की, मिस्ट मिस्ट माने होता है धुंध, कोहरा। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। जैसे जैसे कोहरा पहाड़ पे छाता है वैसे वैसे सारी बर्ड्स जो है वो साइलेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो छुप जाती हैं, ठंड हो जाती है ना एकदम से, तो वो पेड़ों में अपने घोंसलों में छुप जाती हैं चिड़ियाँ और साइलेंस हो जाता है। So you can see the beautiful pictures. Perhaps that what makes the mist so melancholy. इसलिए मिस्ट को melancholy कहा गया है। melancholy माने क्या होता है? सैड। यानी कि आप देख रहे हैं कोई नहीं बाहर है, ना चिड़िया ना कोई व्यक्ति, सब लोग अंदर छुप गए हैं कि सबको मालूम है कि बारिश होने वाली है, कोहरा सा छाता जा रहा है। Not only does it conceal the hills, conceal माने छिपाना, हाइड करना, केवल वो पहाड़ों को ही नहीं, आपने देखा कोहरा जब छाता है तो सामने कोई चीज दिखाई नहीं देती, तो वो हिल्स को भी कंसील नहीं कर लेता है, केवल इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस। और ब्लैंकेट माने कवर अप, उनको कवर अप कर देते हैं, कंबल ओढ़ने के बाद हम कवर अप हो जाते हैं, ऐसे ही वो प्रकृति जो है वो पूरे पहाड़ों को, इसको अपने कोहरे से कवर अप कर रही है और साइलेंस हो गया, शांति हो गई। ओनली एन hour ago the trees were ringing with bird song. एक घंटे पहले ही चिड़िया जो पेड़ पे चहचहा रही थी, क्योंकि उस समय कोहरा नहीं छाना शुरू हुआ था, है ना, लेकिन जैसे जैसे कोहरा बढ़ता जा रहा है सब चिड़िया छुप गई और अब साइलेंस हो गया। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल। डेथली माने जब कहीं मर जाता है कोई तो कैसा सन्नाटा छा जाता है, तो वही डेथली स्टिल माने एकांत, शांति हो गई। एंड दो इट वर मिडनाइट, जैसे कि आधी रात हो, जैसे आधी रात को भी मिडनाइट के में स्टिल हो जाता है, कोई आवाज नहीं होती क्योंकि सब लोग सो जाते हैं। तो इस तरह से दो चीज़ों से कंपैरिजन किया है उसने, डेथ से और मिडनाइट स्लीप से, इस साइलेंस का। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हाउस है, आप ये देख रहे हैं टिन शेड घर है, और ये इसलिए टिन शेड बनाए जाते हैं ताकि बारिश हो तो पानी नीचे गिर जाए। अगर हम लोग की तरफ नॉर्थ में कैसे घर बनाए जाते हैं, छतें जो होती हैं वो प्लेन होती हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ इतनी बारिश नहीं होती तो पानी इकट्ठा होने का, लेकिन यहाँ पर क्या है, बरसात हिल स्टेशन पे साल भर पानी बरसता है, तो इसलिए छतें ऐसी बनाई जाती हैं कि पानी ऊपर ना रुके। तो थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज, बिजू एक कैरेक्टर है स्टोरी में, उन्होंने दिया है, उनके घर के पास रहता था, वो अपनी बहन को आवाज दे दे के बुला रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है आप कैसे कोहरा कोहरा छाया हुआ है। आई कैन हेयर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड, मैंने देखा उसको, मैं सुन भी सकता हूँ कि वो हिल साइड पे उसके भागने की आवाज आ रही है।
बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन उसको दिख नहीं रहा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि वो अपने घर से देख रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है। हिल साइड, ये देख रहे हैं आप, हिल्स कितने ब्यूटीफुल हैं। अब वो जून 24 का था डिस्क्रिप्शन, अब ये जून 25 का। सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, वार्म एंड ह्यूमिड एंड नॉट ओनली कोल्ड, हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। यानी कि सम जेन्युइन, जेन्युइन माने वाकई में, असली में, अर्ली मानसून रेन यानी कि मानसून शुरू होने से पहले ही रेन जो शुरू होती है उसको अर्ली मानसून रेन कहते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड, क्योंकि गर्म है और ह्यूमिड है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत होती है, नमी। एंड नॉट ओनली दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टाफ, ये देख रहे हैं आप, हाई एल्टीट्यूड के लिए मैंने पहाड़ का चित्र बना के दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये हाइट बताने के लिए होता है। तो उतनी सर्दी नहीं है जो जितनी हाई एल्टीट्यूड स्टफ में होती है। वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर राउंड, पूरे साल भर जैसी सर्दी वहाँ रहती है वैसी नहीं है अभी, क्योंकि शुरुआत है रेन की, तो ये वार्म एंड ह्यूमिड है। द प्लांट सीम टू नो इट टू, पौधे जो होते हैं ना, ये प्रकृति जो बहुत सिंबॉलिक है, वो पूरे इसका बता देती है। कैसे? प्रकृति कैसे बता देती है? एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रेयर्स इट हेड फ्रॉम द फर्न्स। अब आप देखो, जैसे ही ये बारिश शुरू होने लगती है तो ये प्लांट है कोबरा लिली, ये इस प्रकार से देखो, कोबरा की तरह इसका आप देख रहे हैं फन दिखाई दे रहा है, तो ये कोबरा लिली प्लांट है। तो ये फर्न में से उगना शुरू हो जाता है। ये उगने का मतलब होता है, सिंबॉलिक है कि मानसून आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए प्रकृति कैसे इशारा करती है। अगर आप प्रकृति को समझते हैं तो आपको प्रकृति बता देती है कि अब रेनफॉल शुरू हो गई। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, मिस्ट जो है वो आपको प्राइवेसी माने आपको एकांत में कर देती है, आपको अकेलापन देती है। एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। ऑन द वे माई स्कूल बॉय आस्क्ड मी, स्कूल बॉय मेरे को मिलता है, वो मुझसे पूछता है, प्लीज डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड दिस वैली इन वन सेंटेंस। वो कहते हैं कि हिल स्टेशन को डिस्क्राइब करो, यानी कि और इस घाटी को एक सेंटेंस में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या यूज करेंगे? पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, वो कहते हैं एक स्वर्ग, पैराडाइज मीन्स हेवन, स्वर्ग दैट माइट हैव बीन, जो हो सकता था। द रेन हैज हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सब सीजनल विजिटर्स, जब बारिश आती है तो उसके संग हेराल्ड माने आने लगते हैं क्या? सम सीजनल विजिटर्स, कुछ प्राकृतिक विजिटर्स। विजिटर्स, प्राकृतिक विजिटर्स कौन से हैं? लेपर्ड, सेवरल थाउजेंड लीचेस, आपने बच्चों लीच देखिए, देखिए आप, इसका मुंह कैसा होता है, ये स्किन के अंदर चिपक जाती है और खून चूस लेती है और ये फूल जाती है, और बाद में फूलने के बाद ये अपने आप को नीचे गिरा देती है, तो ये ब्लड जो है सूखती है ना। तो थाउजेंड ऑफ लीचेज और लेपर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। एज फॉर लीचेज आई शैल सून गेट यूज टू लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, देख रहे हैं आप ब्लड कैसे वो ब्लड को सोखती है, तो ब्लड लेटिंग की आपको आदत हो जाएगी। वो कहते हैं मुझे भी थोड़े दिनों में इसकी आदत हो जाएगी, क्योंकि बारिश में ये इतनी थाउजेंड्स हो जाती हैं हिल स्टेशन पे कि इनसे बचना मुश्किल है। अब जून 27, देख रहे हैं आप, हर दिन का उन्होंने एक एक दिया है, हर दिन में आप एक एक प्रकृति की चीजों को आप पाएंगे। अदर न्यू अराइवल्स आ, अब नई नई चिड़िया आने लगी। अदर अराइवल्स, स्कारलेट, मिनीवेट, स्कारलेट ये लाल रंग की चिड़िया दिख रहा है, फोटो बनी है। एंड द फीमेल्स आर येलो, इसकी फीमेल येलो होती है, मेल रेड होती है। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स, फ्लिटिंग माने उड़ती हुई, साइलेंटली चुपचाप बैठी है पेड़ों के बीच में। द लाइक ब्रिलियंट ज्वेल, जैसे ज्वेल माने नग, हीरे जवाहरात, जैसे हीरे जवाहरात चमकते हैं ऐसे वो चमकती है। नो मैटर हाउ लीफी द ट्री इज, दीज ब्रिलियंटली कलर्ड बर्ड्स कैनॉट कंसील देम, चाहे कितना भी पत्तीदार पेड़ हो, लेकिन ये ब्रिलियंटली कलर यानी बहुत ही ज़्यादा इनके कलर्स ब्राइट होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं रेड और बता रहे हैं मेल येलो होती है, तो अपने आप को इनको कंसील करना माने छुपाना बहुत मुश्किल है पत्तियों में। ऑल्दो बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, लेकिन अगर वो चुपचाप साइलेंट रहती हैं, दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस, तो कई बार वो ऐसा हो जाता है कि उन पे लोगों का ध्यान ना जाए, अगर वो बोले ना, लेकिन अगर वो गाती हैं तो वो पकड़ी जाती हैं, क्योंकि आराम से इतने हरे भरे पत्तों के बीच में भी इतने ब्राइट कलर्स चमकते हैं, और पर अगर शांत हो तो शायद ना दिखें, लेकिन गाती हैं तो वो समझ में आ जाता है। along with some unnecessarily aggressive pair of drongos, ये देख रहे हैं आप, काली रंग की चिड़िया ड्रोंगोस बनी है, ये ड्रोंगोस होती है। चेजिंग द मिनिवेट्स, ये बहुत लड़ाकू टाइप की होती है, और ये चेजिंग माने भगा देती है मिनिवेट्स को अवे। अननेसेसरली एग्रेसिव यानी कि बिना किसी बात के इनको गुस्सा रहता है, एग्रेसिव मीन्स गुस्से में रहती है। तो आप देखिए कितना माइनर ऑब्जर्वेशन है रस्किन बॉन्ड का, इन्होंने कितना खूबसूरती से प्रकृति को डिस्क्राइब किया है। कभी आपने देखा है कि कोई चिड़िया कौन सी चिड़िया को दौड़ाती है, कौन सी चिड़िया के कलर बहुत ब्राइट है, कैसे वो छुपती है, कैसे वो गाती है, तो ये सब चीजें हमें प्रकृति के पास ले जाती है। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from
नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल, सर्वेंट के क्वार्टर के पास एक लेपर्ड ने कुत्ते को उठा लिया। ये देख रहे हैं आप फोटो में। इन द इवनिंग इट अटैक्ट वन ऑफ द बिजूज काउ, और एक दिन वो बिजू की काउ पे, बिजू जो है व्यक्ति उसकी काउ पे अटैक करने के लिए आता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो लेपर्ड्स होते हैं ये मैन ईटर्स बन जाते हैं, क्योंकि जब ये घायल हो जाते हैं या जब इनको शिकार जंगल में नहीं मिलता है आसानी से, तो ये शहरों की तरफ को आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ इजीली ये जानवरों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये काव है, डॉग है, ये इनको आदत नहीं होती जंगल की, और ये शहर के हिसाब से नॉर्मल लाइफ रहते हैं, और ये जंगली जानवर इनको आके आसानी से पकड़ के खा सकते हैं। तो कई बार ये जंगली जानवर जो है वो शहरों की तरफ आ जाते हैं। तो इसी तरह ये जो लेपर्ड है ये लपका हुआ है और ये बार बार इधर आ जाता है। बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रीकेशंस, लेकिन बिजू की माँ आ गई है और वो इम्प्रीकेशन माने गालियाँ, अब्यूजेस उसको देती है, तो वो भाग जाता है। वैसे ये रेयर केस है कि वो भाग जाए, हो सकता है वो बिजू की माँ को भी अटैक कर सकता था, पर इस केस में वो भाग गया है। ट्री क्रीपर, क्रीपर माने बेलें। अब देखिए जब जैसे बारिश होती है तो सारे पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो क्रीपर्स मूव रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ एन ओक ट्री, पर क्रीपर एक बेल चढ़ रही है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल, और जो बीच में चिड़िया आती है उनको वो स्नैप करके हटा देती है। नाउ दैट द रेन आर हियर देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवरस बर्ड्स। डर्थ माने कमी, क्योंकि अब कोई खाने की कमी नहीं है इंसेक्टिवायरस चिड़ियों के लिए। बहुत से इंसेक्ट्स आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो वो लोग खूब मजे से खा रही हैं। अगस्त 2, अब 2 अगस्त की आ गई है रिपोर्टिंग। ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द कॉरुगेटेड टिन रूफ। कॉरुगेटेड देख रहे हैं अब, ये टिन रूफ बनी हुई है, मैंने फोटो लगाई है स्लिप टिन रूफ की। तो इस पर ड्रम, यानी कि जब बारिश पे धन 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 गिरेगी तो आवाज आएगी ना। इट हैज बीन नो स्टॉर्म नो थंडर जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर। कोई स्टॉर्म आंधी तूफान नहीं है, कोई थंडर बादल नहीं गरज रहा है, बिजली नहीं कड़क रही, केवल एक स्विश, स्विश माने एक बौछार, लगातार पानी बरस रहा है। ट्रॉपिकल डाउनपोर, ट्रॉपिकल माने जो बारिश होती है, जो हाई एल्टीट्यूड्स पे बारिश होती है वो हो रही है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, वो जाग रहे हैं, एट द सेम टाइम एंड डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, वो मुझे सोने भी नहीं दे रही है, क्योंकि रूफ के ऊपर इतनी जोर जोर से गड़गड़ गड़ बारिश बरस रही है तो उसको सोने भी नहीं दे रही है। It is a good sound to read by, the rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing uncountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. तो अब गुड सॉन्ग, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, टू रीड बाय, पढ़ने के लिए, द रेन आउटसाइड और क्वाइट विद इन, बाहर बारिश हो रही है, अंदर शांति है, तो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका है। एंड ऑल्दो द टिन रूफ्स आर गिविंग बाय स्क्रीमिंग अनकाउंटेबल लीक्स, अनकाउंटेबल लीक्स माने उनका घर जगह जगह से टपक रहा है अंदर से, तो क्या हो रहा है कि स्प्रिंग की अनकाउंटेबल लीक हो रही है, यानी अनगिनत जगहों से घर टपक रहा है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच, यानी कि उनको ऐसा भी है कि वो बारिश को छू भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहे हैं तो बारिश में तो नहीं है, लेकिन येट इन टच, लेकिन तो भी रेन के टच में है, क्योंकि उनके घर में जगह जगह पानी टपक रहा है, तो वो रेन के टच में भी है। August 3, the rain stops, अब बारिश रुक गई है। The clouds begin to break up, अब clouds टूटने लगे हैं। The sun strikes the hill on my left, सामने से सूरज निकल रहा है। In an oak tree, the crow shakes the raindrop, एक कौवा है वो रेन ड्रॉप को, बारिश की बूंदों को अपने फेदर से शेक कर रहा है, हटा रहा है। And calls disconsolately, disconsolately माने कंटिन्यूसली, बिना सांस लिए एक स्वर में कौ 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 करे जा रहा है। देख रहे हैं कौवे, है ना। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक, एक लकड़ी औरत है वो और लकड़ियों को काट रही है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल, और काउबेल के गले में जो घंटी बधी रहती है बैलों के, गायों के, वो घंटी के बजने की आवाज आ रही है। तो वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। अब देख, एंड सडनली काम एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रिवाइन। रिवाइन माने हो रहा है नदी, ये देख रहे हैं अब नदी सी है, नदी की गहराइयों से एक चिड़िया, ये थ्रश बर्ड है, आप देख रहे हैं ये बर्ड बनी हुई है, ये विसल करके सीटी बजा बजा के गाना गा रही है। क्लीन और प्योर सॉन्ग है इसका, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रस्ट। तो आप देखिए कितना खूबसूरत होगा, मेरा तो ऐसा मन हो रहा है मैं अभी यहाँ चली जाऊँ। द हिल साइड्स आर लश एट लेट मानसून, और पूरी हिल साइड्स पे, यानी कि पहाड़ की चोटियों के किनारे 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 पूरे मानसून फ्लावर्स हैं। देख रहे हैं आप, वाइल्ड बाल्सम, ये ऊपर बाल्सम की फोटो लगी है, फिर डहलिया है, फिर बेगोनियाज और ग्राउंड ऑर्किड्स, ऑर्किड्स की फोटो भी लगी है। तो आप देख रहे हैं कि सारी जो घाटी है वो फूलों से भर गई है, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो ये सारी घाटी फूलों से भर गई है। और ये देख रहे हैं आप येलो मिनीविट की मैंने फोटो भी लगाई हुई है यहाँ पर भी एक, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है। August 12, एंडलेस रेन, फिर से बारिश शुरू हो गई है। परमानेंट मिस्ट, लगातार कोहरा छाया हुआ है। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days,
लगातार 8-9 दिन से बारिश हो रही है, सूरज निकला नहीं है, तो कोहरा छा गया। और जब ऐसा लगातार कोहरा छाता है तो आपको मालूम है कि घर में भी पूरा सब कुछ गीला गीला हो जाता है ना। विथ द ड्रिप्स ऑफ द लीकिंग ड्रेन पाइप, जो ड्रेन पाइप है उनकी नाली है वो देखो ड्रिप कर, आप देख रहे हैं जगह जगह घर में पानी टपक रहा है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, सब कुछ गीला गीला सॉगी बारिश बारिश वाला लगता है। थोड़े दिन तो बारिश अच्छी लगती है, लेकिन जब ज़्यादा लगातार होती है तो घर में एक स्मेल सी आने लगती है सॉगीनेस की। तो वही चीज़ उनके वहाँ हो रही है। नो वे टू गो, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। पेस द रूम, रूम में ही घूमिए। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखिए। एंड अ फ्यू बॉबलिंग अम्ब्रेलास, आपको कुछ अम्ब्रेला दिखेंगे भाई, जिनको मजबूरी है वो छाते लेके बाहर जाते हैं। एटलीस्ट इट इजेंट कोल्ड रेन, लेकिन ये ठंडी बारिश नहीं है, गर्मियों की बारिश है तो ठंडक नहीं है इस समय। August 31. It is the last day of August and the lush monsoon growth has reached it. अब जो आखिरी दिन आ गया अगस्त का, और मॉनसून में जितने पौधे बढ़ने थे वो अपनी पीक पर हैं। आप देख रहे हैं मैंने फूलों की ढेर सारी फोटोज लगाई हैं ये बताने के लिए कि, और कि सब कुछ जो है वो फूलों का बिल्कुल पीक पे है, मतलब अपनी प्रकृति पीक पे है सुंदरता में। इसमें आपको बहुत सारे चित्र दिखाई देंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग, आप देख रहे हैं कोबरा लिली लाल हो गया है। इसका मतलब क्या है? दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। शुरू में आपने देखा था कि कोबरा लिली खिल रहा था, उग रहा था, है ना, अपनी वो उसने फर्न से निकाली थी, तो यानी कि बारिश शुरू हुई। अब जब वो लाल हो गया इसका मतलब बारिश खत्म होने वाली है। तो ये प्रकृति सिंबॉलिक है, आपको सिंबल दे रही है। फिर आप देख रहे हैं क्रिविसेस, यानी कि जो पत्थरों के बीच में फूल उगा हुआ है। ये देखिए खूबसूरती प्रकृति की, बारिश के मौसम में कहीं भी फूल लगता है, कहीं भी बीज गिरा, थोड़ा पानी मिला, फूल लग गया, वो पौधा उगाया। और देख रहे हैं आपकी कैसे लैंडस्लाइड फूलों से भरी हुई है घाटियां। तो इस समय जो है मानसून अपने पीक पे आ गया है, संग में उसमें ग्रोथ पौधों की फूलों की अपनी पीक पे है। इन अ फ्यू डेज द वन फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और जो फर्न ग्रीन ग्रीन करके पौधे हैं वो सब येलो होने लगेंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट, लेकिन अभी वो हरे हैं और सीधे खड़े हुए हैं। ग्राउंड ऑर्किड, मॉव लिली, लेडी स्लिपर, वाइट बटरफ्लाई, ऑर्किड ऑर्किड्स पुट एंड फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रास स्लोप ऑफ लैंडोर। लैंडोर माने पूरी जो पहाड़ की चोटी है उससे, ठीक है। ऑन द ग्रास सोपी स्लोप विद वाइल्ड डेलियाज रेड एंड येलो मेजेंटा, देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हैं। रेयर देयर हेड फ्रॉम द रॉकी क्रिविसेस वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ भी उनको होल्ड या पकड़ मिलती है वहाँ वो फूल उग जाते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों बहुत सारे तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। स्नेक्स एंड रोडेंट्स, अब देखो केवल ऐसा ही नहीं कि फूल है, लेकिन बहुत सारे अनवांटेड विजिटर्स भी आ जाते हैं। स्नेक्स, सांप, रोडेंट्स माने जो रात में निकलने वाले जीव जंतु होते हैं, क्योंकि उनके फ्लडेड देयर आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज, उनके होल और बरोज पानी से भर गए हैं। टेक शेल्टर इन रूफ, तो वो रूफ में, छतों में, एटिक्स में, है ना, और गोडाउन में वहाँ पे घर बना लेते हैं। और शिरयू, ये देख रहे हैं आप शिरयू, है ना, छछूंदर, उसकी आई साइट वीक होती है। ब्लंडर्स अबाउट, इधर उधर कमरे में घूमती है, आपके घरों में भी आ जाती होंगी। अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, अम्यूजमेंट माने बच्चों को बड़ा मजा आता है। ये देख रहे हैं आप स्नेक, अंदर घुसा आ रहा है स्नेक, एटिक पे आ गया है। एटिक्स माने ये जो जलाते हैं जहाँ आग वहाँ पे, और जो घर के वो बने रहते हैं। डोंट किल इट एडमोनिशेस, माँ जो दादी माँ गुस्सा होती है, इनको मारना मत छछूंदर को। छछूंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी, वो पैसा लाती हैं। एंड श्योर इनफ आई रियलाइज अ चेक इन द मेल, उसी दिन उसको एक चेक मिलता है ना, नॉट अ वेरी, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता बट कुछ तो मिलता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु आर द अनवांटेड विजिटर्स, तो आपको बताना पड़ेगा स्नेक, रोज एंड शिव, ये सब अनवांटेड विजिटर्स हैं। अक्टूबर 3, अब अक्टूबर आ गया। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू द विंटर रेन। अब देखिए अगस्त में जो है वो मानसून रेन थी, अब विंटर रेन हो गई। अब जैसे जैसे सर्दी में बारिश होती है वो विंटर रेन है। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स, यानी कि बड़े ऊंचे पहाड़ों पर, एल्टीट्यूड मैंने दिखाया था ना, बहुत हाइट पे पहाड़, तो वहां पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। आफ्टर एन इवनिंग होलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म माने ओलों की बारिश, है ना, द स्काई एंड द हिल आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइन, और फिर उसके बाद स्काई और हिल पे पूरे पे पीली पीली रोशनी छा गई है। अब जनवरी 26 यानी विंटर्स की रेन, विंटर्स की रेन बहुत ठंडी पैदा करती है, बहुत ठंड होती है। इन द हश साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माय फ्रेंड, तो उसका एक फ्रेंड है, ठीक है, हु हैज गॉन देयर, वो वहां जा रहे हैं। हु हैज वाज हेयर हैज गॉन, उसका एक फ्रेंड आया हुआ था जो जा चुका है। इट्स अ वेरी लवली वेरी क्वाइट
एंड आई सिट इन अ लिटिल साइलेंस, अ साइलेंस विद इन। उनका एक फ्रेंड था, उनके पास आया हुआ था, वो चला जाता है तो वो बहुत साइलेंस महसूस करते हैं। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, चारों तरफ रिदम है रेन की, एंड अ स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, और पत्तियों के ऊपर स्टेडी ड्रिफ्ट है, लगातार पानी गिर रहा है। और लेमन्स ऑन लेमन्स, कहाँ का, नींबू के पेड़ पे, रूफ पर, ड्रमिंग ऑन ड्रेंच डेलिया, ड्रेंच माने भीगे हुए डेलियास पर, विंडो पेन्स, खिड़कियों पे, होल वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन द डार्क कैरस, और पूरा घर ऐसे लग रहा है जैसे मिस्ट ने पूरे घर को घेर लिया है और वो उसको घेर के चाट रही है, यानी कि पूरे घर को उसने कैरेसेस कर रही है। As I pause near a window, the rain stops and starts again. वो विंडो के पास खड़े हुए रॉबिन रस्किन बॉन्ड, आप देख रहे हैं बारिश बंद हो रही है, शुरू हो रही है। ट्री नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, पेड़ जो है वो हरे की बजाय ग्रे हो गए हैं। मिनेस मी विद देयर लोनली, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्सा में हैं, चिढ़ गए हैं, लोनलीनेस, क्योंकि बारिश लगातार जब होती है तो हर चीज का रंग धीमे धीमे बदलना शुरू हो गया है। फिर लास्ट मार्च 23, तो आप देख रहे हैं उन्होंने पूरा अगस्त से लेके मार्च तक डायरी में पूरा रेन का डिस्क्रिप्शन किया है ना। मार्च में द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव सीन, बहुत काला बादल था उस दिन। स्क्वाटेड हुआ, स्क्वाटेड माने घेर रखा था, जिसने पूरे मसूरी के ऊपर छाया हुआ था। एंड देन इट हेल मार्बल्स, ये देख रहे हैं आप मार्बल्स गिर रहे हैं, ये मैंने वीडियो बनाया छोटा सा यहाँ पर। फ्रॉम हाफ एन आवर, करीब आधे घंटे तक ये ओलों की बारिश होती रही। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और पूरे बादल जो थे वो साफ हो गए, क्योंकि हिल स्टॉर्म के रूप में सारे बादल गिर गए। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और आप देख रहे हैं फोटो में भी मैंने रेनबो की भी चित्र लगाया है, रेनबो फॉर्म हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे पूरा डिस्क्रिप्शन है मॉनसून रेन से लेके विंटर रेन तक का और एंड ऑफ द रेन का। बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन था ये। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। सो कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।